ناظرین، پاکستان میں رات گئے رات کے اندھیرے میں دو اہم ترین خبروں کو جن کا پاکستان کے سیاسی، معاشی، عسکری، آئینی، قانونی اور سفارتی مستقبل کے ساتھ تعلق ہے، ان کو رات کے اندھیرے کے اندر بڑا ہی سافٹ کر کے جاری کرایا گیا اور یہ کہا گیا کہ وزیراعظم نے فیلڈ مارشل کی بطور آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کی منظوری دے دی ہے۔ پہلی خبر یہ سافٹ کر کے پاکستانی میڈیا کو جاری کی گئی اور اس کے بعد پھر یہ خبر جاری کی گئی کہ صدر مملکت نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی کی جو سمری ہے وہ منظور کر لی ہے۔ لیکن ہوا کیا ہے اصل میں؟ باقاعدہ طور پر یہ خبر کیا ہے؟ خبر جناب یہ ہے کہ پاکستان میں سال 2031 تک، یعنی کہ اگلے تقریباً 5.5 برس تک کے لیے باقاعدہ طور پر پاکستان میں ماشاء اللہ نافذ کر دیا گیا ہے، اور فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے باقاعدہ طور پر آصف علی زرداری صاحب سے اور شریفوں سے، یعنی نواز شریف صاحب سے اور شہباز شریف صاحب سے باقاعدہ طور پر چارج لے لیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے متعلق پہلا فوجی آرڈر بھی باقاعدہ طور پر جاری کر دیا گیا ہے، کیونکہ گزشتہ چند دنوں سے اس قسم کی خبریں بار بار سامنے آ رہی تھیں کہ صرف اور صرف عمران خان صاحب ہی اس ہائبرڈ رجیم کے خلاف آخری رکاوٹ ہیں۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کو آخری رکاوٹ قرار دیا تھا، اور اس دوران عمران خان صاحب کے جو آپس میں مشترکہ حلیف ہیں جو عمران خان صاحب کے مشترکہ حریف ہیں اپنی طرف سے، چاہے وہ پاکستان کا روایتی سیاسی مافیا ہو، چاہے وہ ان کے ہینڈلرز ہوں، وہ ان کے سہولت کار ہوں، کیونکہ ان کی کچھ ذاتی دکانوں کا مسئلہ تھا عمران خان صاحب کی واپسی کی صورت، کیونکہ یہ ان کی ذاتی دکانیں ہمیشہ کے لیے بند ہو سکتی تھیں، اور گزشتہ ایک ہفتے کے اندر یعنی 27 نومبر کی رات سے لے کر 4 دسمبر کی رات تک جو کچھ پاکستان کے اندر کیا گیا وہ ایک باقاعدہ طور پر تاریخ ہے۔ اگرچہ تو جو ہے وہ اپریل 2022 میں عمران خان صاحب کی حکومت کو جب غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر گھر بھجوایا گیا تھا، اس کے بعد سے یہ ہائبرڈ رجیم چل رہا ہے، اور پاکستان ہر آئے دن سفارتی سطح پر، آئینی قانونی عدالتی سطح پر، سیاسی سطح پر، معاشی سطح پر آئے روز ایک نئی معاشی جو ہے نا، جس کو کہا جانا چاہیے کہ معاشی پستیوں کی جانب گر رہا ہے۔ لیکن کل رات تو حد کر دی گئی، اور باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب کے بغض میں پاکستان کے روایتی سیاسی مافیا کی طرف سے مکمل طور پر سرنڈر کر دیا گیا ہے۔ اور یہ سرنڈر بظاہر اس کو شاید کچھ بڑے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی عمران خان صاحب کی، پاکستان تحریک انصاف کی یا پاکستانی عوام کی شکست کے ساتھ جو ہے وہ اس کا موازنہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا شکست کے ساتھ اس کی تعبیر کر رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ عمران خان صاحب کی شکست نہیں۔ عمران خان صاحب تو آج بھی ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک ہی پیغام پاکستانی عوام کے ذریعے بار بار جو ہے وہ پوری دنیا تک پہنچا رہے ہیں، پاکستانی عوام تک پہنچا رہے ہیں۔ وہ پیغام کیا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ پاکستان کے اندر سال 1947 سے لے کر سال 2025-26 تک گزشتہ 75-80 برسوں کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا وہ آپ کے سامنے ہے، کہ کوئی 8-10 سال کا تھوڑا بہت اقتدار سویلین حکمرانوں کے پاس، اس کے بعد پھر 10, 12, 15 اور 20 سال تک اس قسم کے ہائبرڈ نظام کے معاملات مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول کے اندر رہیں، چاہے وہ جنرل ایوب کا ایرا ہو وہ اشرا ہو 10 سال کا، چاہے وہ جنرل ضیاء الحق کا ایرا ہو وہ اشرا ہو 10 سال کا، چاہے وہ جنرل مشرف کا ایرا ہو وہ اشرا ہو 10 سال کا، یا ابھی 2022 سے شروع ہونے والا یہ نظام ہو جسے اب 2031 تک لے جایا جا رہا ہے، جو کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی براہ سربراہی کے اندر یہ نظام چلایا جائے گا۔ اب چاروں مواقع کے اوپر ہوا کیا؟ وہ سیاست دان جنہیں جو ہے وہ 58 کے اندر جنرل ایوب صاحب نے سائیڈ کے اوپر کیا تھا، دوبارہ کبھی پاکستان کی تاریخ کے اندر اس طرح سے نظر نہیں آئے۔ اس کے بعد پھر زلفی بھٹو نے جو ہے وہ جنرل ایوب کی زیر سایہ جو ہے وہ اقتدار انہوں نے سنبھالا۔ اس کے بعد جب ان کا اسٹیبلشمنٹ کا آمنا سامنا ہوا تو پھر وہ ایک پوری تاریخ ہے کہ پیپلز پارٹی اس کے بعد کبھی بھی پنجاب کے اندر نہ ہی اکثریت حاصل کر سکی، نہ ہی کبھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کسی قسم کا سٹینڈ لے سکی، ہمیشہ سے وہ ڈیل کر کے جو ہے وہ اقتدار کے اندر آتی رہی۔ اس کے بعد پھر 10 برس کا عرصہ، اس کے بعد پھر جنرل مشرف کا آنا، جنرل مشرف کے دور کے اندر اس سے پہلے جب نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کا آمنا سامنا ہوا، کیسے ڈیل کر کے نواز شریف صاحب سعودی عرب فرار ہو گئے، اور اس کے بعد پھر ہمیشہ سے نون لیگ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے ہی اقتدار کے اندر آتی رہی۔ ہر اگلے 2 الیکشن جو ہوئے تھے پیپلز پارٹی کو، 88 اور 85 کے الیکشن میں پہلی مرتبہ موقع ملا، آپ کے سامنے ہے نتائج کیا ہوا تھا۔ نواز شریف صاحب کو جب اس کے بعد 2002 کے الیکشن کے اندر موقع ملا یا بعد میں موقع ملا تو کیا نتائج تھے آپ کے سامنے ہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہوا، عمران خان صاحب کا کیس کیوں مختلف ہے؟ 2013 کے الیکشن کے اندر عمران خان صاحب کو اپوزیشن لیڈر
बनने से रोका गया, 2018 के इलेक्शन के अंदर इमरान खान साहब की सादा अक्सियत को रोका गया, 2024 के अंदर इमरान खान साहब की 2/3 अक्सियत को रोका गया, और अब इस बात की कोशिश की जा रही है कि जब इमरान खान साहब पाकिस्तान के अंदर बड़ी आसानी के साथ 3/4 से ज्यादा अक्सियत हासिल करने की पोजीशन में है तो उनका रास्ता रोका जाए। रवायती सियासी माफिया पीपल्स पार्टी और नून लीग अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, और बदले में वो क्या चाहते हैं कि जनाब इमरान खान साहब को आप अंदर रखें, इमरान खान साहब को आप पाकिस्तानी सिस्टम से आउट करें। दूसरी जानिब एस्टेब्लिशमेंट की भी यही ख्वाहिश है कि वो जनाब रवायती सियासी माफिया के साथ मिलकर पाकिस्तान को ऐसी जगह पर वो ले गए हैं कि आलमी इदारों की रिपोर्ट्स आप पढ़ लें, चाहे इंसानी हकूक के मुतल्लिक हों, वर्ल्ड बैंक IMF की रिपोर्ट्स पढ़ लें, चाहे पाकिस्तान के मुआशी मामलात के मुतल्लिक हों, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स पढ़ लें, चाहे पाकिस्तान के अंदर आईनी अदालती इदारों के हवाले से हों, या दुनिया भर के सफारती हलकों की तरफ से आने वाले माजी में बयानात का जायजा ले लें। वो तमाम तर बातें वाज़ेह करती हैं कि पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ एक शख्स के बुक्स के अंदर उस जगह के ऊपर पहुंचा दिया गया है कि जहां से सब शायद अब वापसी का सफर जो है, वापस जो है, ये जो दायरों का सफर पाकिस्तान में 75-80 बरसों से जारी है, एक बार फिर उसका आगाज कर दिया है। लेकिन उम्मीद की किरण क्या है? उम्मीद की किरण एक बार फिर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है, जो आज भी खड़े हुए हैं डट के। और अब रात गए जब ये नोटिफिकेशन लाया जाना था तो इससे पहले पहला ही फौजी हुक्म जो जारी किया गया, जो कि जनाब बाकायदा तौर पर तय किया गया कि हम जनाब इमरान खान साहब के मामले का मसले का कोई हल नहीं निकाल पा रहे, तो अब इस तरह से किया जाए कि इमरान खान साहब की बहन उज़्मा खान, अलीमा खान के बाद जो उज़्मा खान ने मुलाकात की, उज़्मा खान से भी मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। अब कहा जाएगा कि जनाब हम आखिरी ऑप्शन के तौर पर आपके सामने रख रहे हैं कि नौरीन खान इमरान खान साहब से मुलाकात कर लें, उन्होंने भी बाहर आकर कोई गुफ्तगू की तो उनके ऊपर भी पाबंदियां लगा दी जाएंगी। इस हवाले से कुछ लोगों को बाकायदा तौर पर टास्क दिया गया था, चाहे वो फैसल वावड़ा हो, चाहे वो दीगर लोग हों, उनके जरिए इस किस्म के बयान दिए गए थे और उनकी जानिब से मुसलसल धमकियां लगाई जा रही थी। यह भी कहा जा रहा था कि गवर्नर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। जहां तक मामला है नोटिफिकेशन का, उस हवाले से पहली खबर क्या जारी की गई, कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म ने फील्ड मार्शल की बतौर आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनाती की मंजूरी दे दी है, समरी ऐवान सदर भिजवा दी है, और यह कहा गया कि यह तैनाती 5 साल के लिए है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। लेकिन ये साथ ही ये कहा कि जनाब ये जो टेन्योर है ये जनाब मार्च 2026 से शुरू होगा, यानी टेक्निकली ये कहा जा रहा है कि मार्च 2031 तक फील्ड मार्शल साहब अपने सौदे पर रहेंगे। इसके साथ साथ चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तोसी की मंजूरी दे दी गई और उनका इतलाक उनकी मौजूदा 5 साल मुद्दत मुलाजमत जो कि मार्च 2026 के अंदर जो है वो खत्म होने जा रही है, वहां से आगे होगा 2 बरसों के लिए। और जब आजम नज़ीर तारड़ और इसके साथ साथ अता तारड़ साहब आए रात गए तो उन्होंने एक तो चाय की प्याली में तूफान करार दिया उन खबरों को, उनको क्यास आराइयां करार दिया। हालांकि तमाम आईनी कानूनी माहिरीन इस बात के ऊपर मुत्तफिक थे। इसके ऊपर इंटरनेशनल आउटलेट्स ने स्टोरी की, डॉन न्यूज़ ने स्टोरी की, BBC ने स्टोरी की कि 27 नवंबर को यह रिटायरमेंट हो चुकी है, कन्फ्यूजन है और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पर चार्ज किसी के पास नहीं है। नए नोटिफिकेशन की जरूरत थी, लेकिन यहां पर आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि जनाब आर्मी नेवी और एयरफोर्स के कवानीन में कोई इबाम नहीं है और वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर सदर ममलकत तैनाती करेंगे। फिर उन्होंने कहा जी 2024 की तरमीम के तहत मियाद ओहदा 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई थी और नई स्कीम ऑफ लॉ में यह गुंजाइश है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के साथ आर्मी चीफ का एक ही नोटिफिकेशन जारी होगा, यानी कि अब आर्मी चीफ साहब का नोटिफिकेशन भी अगले 5 बरसों के लिए जारी कर दिया गया है। इसके अंदर बहरहाल फिर भी कंफ्यूजन है कि ये जो है वो नवंबर 2030 तक होगा या इसकी मुद्दत भी मार्च 2031 तक होगी, क्योंकि फील्ड मार्शल के ओहदे के हवाले से कहा जा रहा है कि वो मुद्दत मार्च 2031 तक है। बहरहाल आज पाकिस्तान में चश्मे फलक ने वो मनाजर देखे सदर आसिफ जरदारी की जानिब से तैनाती की समरी की मंजूर किए जाने के बाद कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल जनाब ये है कि पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर जो है वो मार्शल लॉ नाफिज हो चुका है और एक बार फिर नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब की जानिब से वही किया गया जिस तरफ इमरान खान साहब मुसलसल काफी अरसे से इशारा कर रहे हैं। अब जरा आप इन तमाम तर मामलात को इस तरह से देखिए कि कैसे कुदरत ने इन तमाम तर चेहरों को पाकिस्तानी अवाम के सामने बेनकाब करना था, खासतौर पर नौजवान नस्ल के सामने बेनकाब करना था। मैं कुछ हकायक आपके सामने रखता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब के जो माज़त ख्वाह हैं उनकी इस हालिया शिकस्त की भी जो भी तावीलें वो करें, यह हकीकत है कि जो है वो ये बात पूरी दुनिया पे अब वाज़ेह हो चुकी है कि नवाज शरीफ कभी कोई हकीकी लीडर नहीं थे। मैं आपके सामने कुछ हकायक रखता हूं। वो एस्टेब्लिशमेंट का परवरदा एक ऐसा जमाना शनास मोहरा था जो आजमाइश की पहली आंच पर पिघल गया और अपनी असल हैत में दुनिया के सामने आ गया। एक मशहूर मकोला है कि बाज लोग सब लोगों को कुछ वक्त के लिए बेवकूफ बना सकते हैं, बाज लोग हमेशा के लिए कुछ लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन सब लोगों को हमेशा के लिए कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। जनरल जिलानी की निगाह इंतखाब नवाज शरीफ पर पड़ने के बाद बवजो वो एस्टेब्लिशमेंट का ब्लू आइड बॉय बन गए और जनरल ज़ियाउल हक ने उन्हें परवान चढ़ाया, पाला पोसा और उन्होंने अपनी दुकानदाराना समझबूझ से काम लेकर अपने वालिद की बताई राहों पर चलते हुए अपनी दौलत के बलबूते पर वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म जो है वो बनने में कामयाब हो गए। लेकिन उनकी हकीकत जो भी है
वो जो भी उनकी हकीकत थी वो बेनकाब होकर रही और नवाबजादा नसरुल्लाह को उनके मुतल्लिक ये कहना पड़ा कि मैंने जिंदगी भर सियासतदानों से मामले किए और सुरखरू रहा, पहली दफा एक दुकानदार से मामला किया और वो मेरे साथ हाथ कर गया। नवाज शरीफ ने कुछ वक्त के लिए सब लोगों को बेवकूफ बनाने में जरूर कामयाबी हासिल की, कुछ लोगों को हमेशा के लिए भी वो बेवकूफ बनाने में कामयाब रहेंगे, लेकिन सब लोगों को हमेशा के लिए बेवकूफ बनाने में वो कामयाब नहीं रहे और पकड़े गए। और जब रात के अंधेरे में जनरल मुशर्रफ से माफी मांगने और डील करने के बाद नवाज शरीफ की जानिब से खानदान समेत लंदन फरार होने के बाद जब यह सारा मामला हुआ तो रोजनामा जंग के लिए एक तहरीर लिखी गई जिसका इक्तबास मैंने आपके सामने रखा और इस कालम का नाम था डील के बाद। कालम नगार थे सीनियर सहाफी अरशाद अहमद अकानी मरहूम। दिसंबर 2000 में उन्होंने ये बात नवाज शरीफ साहब के मुतल्लिक लिखी और उन्होंने ये बात वाज़ेह कर दी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कभी भी जो उन्हें हमेशा से कहा जाता ना कि जनाब वो एक बहुत बड़े लीडर थे, वो कभी भी किसी किस्म के कोई लीडर नहीं थे। उनका चेहरा जो है वो पाकिस्तानी अवाम के सामने आश्कार होना था और वो होकर रहा। और जहां तक आसिफ जरदारी साहब का ताल्लुक है वो तो जनाब साल 2008 से लेके और अभी तक अगर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के नजदीक इस सिस्टम के सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं तो वो तो जनाब आसिफ जरदारी साहब ही हैं। अगर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से कोई फायदे सबसे ज्यादा किसी ने समेटे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद तो वो आसिफ जरदारी साहब हैं। और गुज़श्ता चंद दिनों से मियां नवाज शरीफ साहब को एक बार फिर हीरो बनाने के लिए मुख्तलिफ जगह से काम का आगाज हो चुका था। कभी अबसार आलम साहब की गुफ्तगू सामने आ जाती थी, कभी आसमा शिराजी साहब का तज्जिया सामने आ जाता था, कभी जनाब इस किस्म का एक तासुर बनाने की कोशिश की जाती थी और कहा जाता था कि मियां साहब जनाब एक बार फिर जो हैं वो डट गए हैं सिविल सुप्रीमेसी के लिए। हालांकि मामला क्या था, उसी पुरानी तनख्वाह के ऊपर वो काम करने के ऊपर राजी हुए हैं। मैंने कहा ना ये इक्तबास जो मैंने आपके सामने पढ़ के सुनाया इनकी एक तारीख है कि जहां थोड़ी सी पोजीशन में हो गर्दन पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन आगे से दबाव आए तो पैर पकड़ लिया करते हैं। अभी भी ये सारी ब्लैकमेलिंग इन्होंने सिर्फ इसलिए करने की कोशिश की, ख्वाहिश इनकी ये थी कि जो बचा कुचा अरसा इस जाली असम्बली के पास रह गया है इसमें उनको वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब कराया जाए। लेकिन सरेदस्त इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से साफ साफ इनकार कर दिया गया है और बाकायदा तौर पर ये जो पूरे हफ्ते के दौरान पहले शहबाज शरीफ साहब गायब हो गए, उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब जनाब इस दौरान कोशिश करते रहे कि इस नोटिफिकेशन के अंदर जो है वो ताखीर हो, लेकिन इत्तलात यही है कि बिल आखिर उनसे उन्हें कहकर जो है बाकायदा तौर पर उनसे नोटिफिकेशन करा लिया गया है और उन्हें कहा गया है कि जनाब ये जो सिस्टम के अंदर जो भी इस वक्त चीजें चल रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ हमारी मरून मिन्नत है। आपका मकबूल तरीन जो सियासी मुखालिफ इमरान खान है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से जेल के अंदर है और अगर आपने कोई हैंकी फैंकी की तो मुस्तकबिल के मामलात आपके सामने हैं। तमाम आप इलेक्शन हारे हुए हैं, फार्म 47 असल वाले अभी भी मौजूद हैं, अदालतों को इशारा किया जाएगा, चीजें खुल जाएंगी और मियां साहब और आसिफ जरदारी साहब का चेहरा पाकिस्तानी अवाम के सामने अभी आश्कार तो है ही, पूरी दुनिया को भी पता चल जाएगा कि कैसे जैली फार्म 47 के साथ जीत कर ये जहां पहुंचे हुए हैं। इसलिए उसी तनख्वाह के ऊपर काम करने के लिए ये हो गए हैं जनाब राजी और एक बार फिर धमकियां उसी तरह की हैं कि हम इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदियां लगा देंगे। पहला बाकायदा फौजी आर्डर जारी इसी हवाले से किया जा रहा है जो फैसल वावड़ा दावा कर रहे थे ना कि हम पाबंदियां लगा देंगे, वो कह दिया गया कि अब इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी है। लेकिन इमरान खान साहब आखिरी मुलाकात में भी उनका आपके लिए यही पैगाम था कि आपने घबराना नहीं है क्योंकि